हेलो, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है सबके? एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। आज हम ज्यादा देर तक जो लोग वीडियो ऑन नहीं रखेंगे उनको मीटिंग से बाहर करने वाले हैं, बिकॉज आई आई एम नॉट यूजिंग एनी पीपीटीज टुडे, और मैं एकदम सामने देखना चाहती हूँ सबको। सो आई विल जस्ट मे बी रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग अगर आपका कैमरा ऑन नहीं रहेगा, वीडियो ऑन नहीं रहेगा। सो हाय हाय हाय, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? हाउ आर यू डूइंग? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। हाउ इज द लाइफ ट्रीटिंग यू? हाउ इज एवरीथिंग? हाउ हैव बीन द 2 days, रादर आई वुड से, जो 2 दिन निकले हैं वो कैसे गए? ओके, बिफोर गोइंग एनी फर्दर, मैं नजर आ रही हूँ और आवाज आ रही है मेरी? यस, ओके। So, as the ritual is, we will start with the sharings from past 2 days learnings. पिछले 2 दिनों में क्या सीखा, क्या रिफ्लेक्शंस हुए आफ्टर द सेशंस एज वेल, क्योंकि आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि 2 घंटे के सेशन के बाद में जब आप घर गए, रात में सोए हैं, सोते समय भी देर शुड बी सम ऑफ द थिंकिंग जो चल रही होगी। अगले दिन सुबह भी, दिन में जब भी टाइम मिल रहा होगा, जब फ्री हो रहे होगे, तो वो थोड़ा सा थॉट कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि ओ, सो व्हाट इज द अलाइनमेंट, हाउ टू गो अबाउट इट, क्या करना चाहिए। ये सब हो ही रहा होगा सबके साथ में, ये मैं बिल्कुल डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो आई वुड लाइक you to just unmute yourself. Maybe one by one we'll take 3-4 shares and share ki kya in day 2 we had time to introspect and reflect and plan for future. Yes, Vikrant, but I would be happy if you can unmute yourself and एकदम अपनी आवाज में, सुंदर आवाज में, so that it can reach the heart of everyone. ऐसे बोलोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा. Hi, good evening, friends. Hello, hello, How are you all? good. Uh, in these 2 days, I really had the time to reflect again and seek clarity where the life is going and where it should go. So, alignment is there, and थोड़ा सा we हो are गया. on the right path. Uh, we are on right path with right people and in right way. So everything will be super from now on, and we'll do well. And that's my wishes for everyone who are here. Thank you, Swati. Amazing. Thank you so much. Thank you for sharing. Anyone else? Anaga, Richa, Ashu, Monica, Durgesh ji. Neha is not well. Neha cannot share. Anyone else? Tina. Tina was there on the first day. You were not there second day. Vilas. Anyone? Just unmute yourself and share what was your learning in the past 2 days. Alipta, you're trying to unmute? Hi, no, Swati, actually, I just wanted to share hi. Thank you so much for the session. I couldn't attend yesterday, actually, so I I'll know. have to go through that part of the session. But thank you so much for all that you're doing. Amazing work that you're doing, and the worksheets you created are just simply commendable. Thank you so much. Thank you. Thank you for the share. दुर्गेश जी, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. विक्रांत, वीडियो ऑन रखना है आज, बिकॉज आज जो लोग ऑन नहीं रखेंगे वीडियो में हटा दूंगी मीटिंग में से थोड़ी देर बाद. मैं So मैं hi, Pati. सो So ओके. hi. आशु, दुर्गेश जी, आई विल कम टू यू नेक्स्ट. आशु, Yeah, यस. because I don't know how long I'll be connected, and since I'm being just coming forth and going and leading the meeting, so whatever I could reflect, we need to have more these kinds of sessions where each one of us can actually reflect on what and where the work and work and space balance is taking us, and especially for people like us who work 24/7, morning to evening, including Sundays, More attending important for you. all your meetings in the car and all those things. But yes, it gives us a thought, where does, how does life treat us? But the best part is it also gives us a, thought that whatever you do, as we were chatting in the morning, whatever we do, we should be actually enjoying each moment of it. As we have been talking, at times we really are lost
whether to give time to our family, especially the women, or to take care of, and what is it to take care of the family, whether it is only the cooking part or giving the quality time that is important. And with it, our professional growth. Okay. So maybe we need to be more reflective upon ourselves and these sessions, and we all speak out, and being this boot camp was a good experience. Let me be there for another 20 minutes. And even if you don't remove me, I'll be lost off in another 20 minutes as I read the session. And all the best, Swati, for being into it. And let's connect more and contribute more in each other's growth. Thank you. Yeah. Bye. Thank you so much. दुर्गेश जी, अब आप unmute कर सकते हैं. And Vilas, you are next, and Vilas is next and last. Yeah, yes, ma'am. दुर्गेश जी, Am आप I स्वाति भी audible? बोल सकते हैं. Yes, please go ahead. Am I audible? No, I Yes, think you are. you. Yes, you are. Yes, you are. थोड़ा लैग हो रही है आपकी आवाज, लेकिन but you are audible. Am I audible? Yes. Oh, thanks. To be honest, I couldn't give my best these 2 days. And even today, I'm doubtful. I have to take a session shortly. But certainly, this was a very, very nice concept. Aligning yourself, being in sync with your, all the facets of life, which normally, we keep on running, running, running. We don't get time or take time to talk to ourselves, to know ourselves. So what you are doing is really good, and you are making us look within, realize where we need to go, what we need to do in life. So that's a wonderful concept. And some of these things I'm able to take advantage of. Some it's my fault, not yours. So I'll try my best to be there in session whatever I can. So Thank you so perfectly much. all right. Thank you so much. Thank you so Perfectly all right. मतलब we are, all of us are on a journey. So yes, we are on the journey. Yes, Vilas. Yeah, hi, Swati ji. Hello, hello, hello. So, very nice. I had been in the last 2 days. Certainly, I think आपने बताया कि हमारी राइड्स जो है सभी की राइड्स ऑलमोस्ट एक बम्पी राइड से गुजर रहे हैं और सब एक स्मूथ राइड चाहते हैं. Yes. स्मूथ राइड चाहते हैं. साथ में मेरा जो एक क्वेश्चन आई थिंक आंसर्ड रह गया था, जो मैंने शायद एक चैट में डाला भी था. हाँ, जो समझ नहीं आया था मुझे. हाँ, बताइए बिल्कुल. Yes. इट वाज समथिंग की जो एग्जिस्टेंस है पूरी, जो नेचर है, why it is, and why human beings are here, Oh, why I am here, what is my role in this existence, yes. So it is about purpose. So what is the purpose of the human life? yes. So I would Is not. it only the wealth? Definitely not. Definitely not. Definitely not. So I think you have raised a very important question that we have to look within. मतलब काफी जो आपके जो 8 पैरामीटर्स जो थे, उसमें काफी पैरामीटर्स आपको बताता है कि यू हैव टू लुक विद इन, नॉट आउटसाइड, Yes. फॉर कंफर्टेबल लिविंग, वर्क लाइफ बैलेंस. एंड जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है सर्टेनली कि शायद ये मुझे अगर पता चलता है तो मेरी जो बाहर देखने वाली जो आदत है या संस्कार बन गया है, वो शायद थोड़ा सा जो है वो अंदर देखने की तरफ जाएगा. Right. Then only That's- I can search for the purpose. I know. Yeah, that's it. Thank you. Thank you, Vilas. Thank you for the question. Actually, this is a very beautiful and wonderful question to be answered. So yes, I would say जब भगवान ने हम सबको बनाया है, इतनी जितनी भी जनसंख्या है हमारी, हर किसी की ये जो आइरिस है वो डिफरेंट है, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है. अगर इतनी मेहनत करके भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने कुछ ना कुछ पर्पस लेके तो आपको भेजा है. लेकिन वो जो कल हमने बात की थी जर्नी के बारे में, वी आर ऑन अ जर्नी. पता नहीं हम अभी समझ पाएंगे या 10 साल बाद समझ पाएंगे, बट वी विल रीच देयर समडे व्हेन somebody is there and just she or he gave you a spark and you will light up with the purpose. So yes, we all have a purpose and we need to go inside. And for that,
वी हैव अ वंडरफुल टेस्ट कॉल्ड पैशन टेस्ट, जो हम बहुत सारे लोगों के साथ में करते हैं. मोनिका ने कल उसके बारे में बताया भी था. वी डिड अ पैशन टेस्ट एंड शी फाउंड आउट मेनी आंसर्स. आई थिंक रिचा इज सिटिंग देयर. Richa has got the answers. So yes, we do get the answers when we go inside. Okay, so before we go any further, I would like जितने भी लोग कैमरास ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर लें, so that हम एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लें with smiling faces. जितने भी लोग कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर लें. साकेत, अंजलि, if you can, if you are not with your daughter again, if you can switch on the camera for a moment, it would be wonderful. Yeah. Yes, yes, yes. So who is taking this screenshot? Thumbs up. Yay. Thank you. Okay. So when we are already reflecting, I would take you back to day one. Day one में we did that wheel of life. और wheel of life में हमने ये देखा where all the misalignment lives. क्या areas हैं जिनमें हमारी life में misalignment है, कितना misalignment है. And in the day two, we discussed about the framework, the 3C framework, where we talked about clarity, courage, and consistency, and how a combo of these three can help you align all the aspects of your life, right? Welcome, Rajesh. You are a bit late, but no worries. So, कैसे हम तीनों C के help से अपनी life में जो जितना भी wheel of life है उसको align कर सकते हैं to the best of our capabilities. Now, I have a question for you. I want you to take a moment and answer this. What will it cost you? What will it cost you to ignore what you have learned or maybe discovered in this boot camp in last 2 days? पिछले 2 दिन में हमने जो भी कुछ सीखा है या फिर डिस्कवर किया है, अगर आपने उसको इग्नोर किया तो उसकी कॉस्ट क्या है आपके लिए? Just one word or maybe a sentence in the chat box, please. जो हमने सीख लिया है, जो हमने जान लिया है अपने बारे में, उसको अभी भी हम इग्नोर करें तो उसकी कॉस्ट क्या है? Mental peace, yes. What else? I want more answers because I know you have reflected. Let it come. Continuous emptiness, yes. What else? Do we have answers? Richa, Ashu, Vilas ji, if you have an answer. Rajesh, Neha ne to already has answered. Anybody? It will cost you life, unstructured life. Yes, yes. And let me tell you, let me explain a very important concept here to you. Concept of cost. Slavery. Oh my God. Such a strong word. And I can remember, Vikrant, the day one also you gave a very strong word. So yes, slavery. So it is how you feel your emotions. Anybody who feels their emotions so deeply can relate with these kind of words. So slavery इतना heavy और इतना strong word है कि slave ही बन जाएंगे हम शायद किसी भी चीज के. अब खुद के भी बनते हैं कई बारी slave, कई बारी किसी और के बनते हैं. But let me not drift away from what I wanted to tell you today. So what I was about to tell you is, so cost का जो concept है बड़ा ही different concept है cost का when it comes to life. Our mind is wired to avoid short-term pain. Our mind is wired to avoid short-term pain. तो जो दर्द होता है, जो cost होती है, वो short term है, उसको हम avoid करते हैं. भले ही फिर वो cost करे हमको एक लंबे दूर का दर्द. For example, आज अगर exercise करना है, gym join करना है, तो वो हम avoid करेंगे. We will not invest in the gym. Rather, we will invest in medicines in the future. और बिल्कुल सेम तरीके से यही जो माइंड है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में बड़ा विश्वास रखता है और लॉन्ग टर्म प्लेजर के बारे में सोचता नहीं है ज्यादा कि आज लॉन्ग टर्म या फिर प्लेजर पे ज्यादा ध्यान देता है और लॉन्ग टर्म जो कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म जो पीस उससे जाने वाला है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता. लाइक अगेन द हेल्थ एग्जाम्पल कि आज वो चॉकलेट, आज वो गुलाब जामुन, आज वो जो भी कुछ है बिंज ईटिंग, अभी तो वो बड़ा मजा आ रहा है. शॉर्ट टर्म प्लेजर तो है लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वो नुकसान ही करने वाला है, हमें सबको पता है. बट स्टिल वी डोंट
So our mind does not allow us to decide the right thing, make the right choice. And here, this is where the courage comes in. और I'll tell you a statistics on this. इंडिया में सिर्फ 3% ऑफ द पॉपुलेशन, 3.7, अराउंड 3.7% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंश्योर्ड. लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो 3.7% है. इफ एनी वन ऑफ यू आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तो आपको पता होगी ये बात. पेनिट्रेशन सिर्फ 3.7% है. बिकॉज आज हमें प्रीमियम देना पड़ता है तो हम वो कॉस्ट अवॉइड कर रहे हैं, और हम जो लॉन्ग टर्म उसकी फायदा मिलने वाला है कि अगर बाय चांस हम बीमार पड़ गए तब जो 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होने वाले इकट्ठे, वो हमें ज्यादा नहीं दिखता, नजर आता. रादर अभी की जो छोटी सी 10-20 हजार 25 हजार की कॉस्ट है वो नजर आती है. सो ब्रेन का जो डिजाइन है वो यही है. क्यों ऐसा है? बिकॉज आवर ब्रेन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू नाउ. आज प्रोटेक्ट करने का काम है ब्रेन का. कल कुछ भी हो जाए उसके बारे में ब्रेन नहीं सोचा. इसीलिए हमेशा ब्रेन क्या बोलता है, वो जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है अगर रिलेशनशिप में, उसको स्किप करो, बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है, लड़ाई होगी, सामने वाले के आंसू आएंगे या मेरे आंसू आएंगे, स्किप करो. डोंट डू इट. डोंट इन्वेस्ट पैसा कहीं भी, बिकॉज अगर काम नहीं हुआ तो क्या होगा. डोंट स्टार्ट वर्किंग आउट, मे बी इट्स गोइंग टू हर्ट. तो इस तरीके की दिमाग ये सारी चीजें हमसे बोलता रहता है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट विच आई वॉन्टेड टू यू टू अंडरस्टैंड कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ लिखी है. मेंटल पीस, कंटिन्यूस एम्प्टीनेस, लाइफ, अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ, ब्रेक डाउन, स्लेवरी. वी नीड फ्रीडम. यस, वी नीड फ्रीडम. सो वी नीड फ्रीडम इज नॉट अ कॉस्ट. दिस इज अ रिजल्ट विच वी वॉन्ट. बट स्टिल ये सब हमें पता है, ये तो लॉन्ग टर्म है ना. लेकिन आज की कॉस्ट, आज का प्लेजर इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन वी मेक अ चॉइस. So we always avoid temporary discomfort. We always avoid temporary discomfort. You don't pay for a gym, rather pay for the medicines in the future. I would not say pay, rather you don't invest in the gym. You don't invest in the relationship now, and then future में कभी जाके अगर बहुत ही खराब relationship होगी, then you pay or do invest on the divorce lawyers. You don't invest in upskilling now, but then pay in terms of lesser increments in future. अभी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा हमको सबको नजर आता है हमेशा. Whether it is an investment of time, whether it is an investment of money, whether it is an investment of energy, whatever, वो हमें हमेशा बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा नजर आता है. So short-term comfort often comes at a cost of a lot of long-term misalignment. जब भी हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को देख रहे हैं तो हमेशा ही हमें सोचना है that it will cost you long-term misalignment for sure. But on the flip side, अगर इसी का दूसरा, इस सिक्के का दूसरा पहलू हम देखने जाएं, so if you take a courageous step today, you will save yourself for lifetime. अगर आज आपने वो जिम में एनरोलमेंट कर लिया और आप जाने लगे कल से जिम, कल से वो रोज बजाय अलार्म को स्नूज करने की, यू स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड यू विल इम्प्रूव ऑन योर हेल्थ. अ लॉट ऑफ जो पैसा जाने वाला है डॉक्टर्स पे, मेडिसिन पे, इस पे उस पे, वो आप बचा पाओगे, राइट? सो नाउ अगेन आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस. व्हाट्स वन थिंग दैट फील्स हार्ड टुडे but would give me peace tomorrow? Give me the answer. Maybe if you don't want to give me the answer in chat box right now, give this answer to yourself. What's one thing, जो भी आपका एरिया सबसे मुश्किल एरिया निकला था ना, उसमें what's one thing that feels hard today but would give me peace tomorrow? राजेश का आंसर आ गया, डिसिप्लिन, टू लीव द कंफर्ट जोन. यस, यस. It feels hard today, but it will definitely, if you take charge, it will definitely give you peace in the long run. वो कहते हैं ना बुढ़ापा संतोष में निकलेगा टाइप्स, या चैन में जाएगा. तो वो yes, to find more and more solutions. Oh wow,
ओके, सो आज हमें करने क्या वाले हैं? आज हम करने ये वाले हैं कि आज आफ्टर द येस्टरडेज कॉन्वर्सेशन विद अनगा, अनगा ने बोला कि लोगों को क्या पेन है, कैसे वो अलाइनमेंट होगा और क्या होगा, देन आई चेंज द एंटायर थिंग जो आज हम बात करने वाले थे. सो आई विल टॉक टू यू टुडे स्पेसिफिकली अबाउट द नेम्स ऑफ योर रेजिस्टेंस. ऑल्दो हम रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करने वाले थे, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर उसका बदल दिया है आज. तो हम सबसे पहले आई विल टेक अराउंड 10-12 रेजिस्टेंस. उस रेजिस्टेंस का क्या नाम है, वो किस तरह से आपसे बात करती है या कैसे शो अप होती है आपकी लाइफ में, क्या इम्पैक्ट करती है वो आपके डिसीजंस को और आपके एक्शंस को, इससे क्या इम्पैक्ट होता है या अफेक्ट होता है आपकी प्रोग्रेस पे, और कॉमन साइंस क्या है जिनसे आप मतलब डे टू डे में रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये होता है, इसका मतलब दिस रेजिस्टेंस इज शोइंग अप. इफ इट इज लेफ्ट अनचेक्ड तो क्या होगा लाइफ में. देन 1 2 3 4 5 6 7th इज टूल्स या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के उस रेजिस्टेंस को आप किस तरह से बीट कर सकते हो. आई विल आस्क यू टू टेक अ लॉट ऑफ नोट्स टुडे. आप अगर चाहो तो एक रेजिस्टेंस के लिए एक पेज बनाओ एंड राइट इट डाउन, और मे बी इफ यू कैन डू इट मेक अ टेबल और टेबल में लिखते जाओ अलग अलग अलग. एंड आखिरी में टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद में व्हाट शिफ्ट दोस टिप्स एंड ट्रिक्स विल क्रिएट और जेनरेट इन योर लाइफ. क्या शिफ्ट होगा सो दैट यू विल बी ऑनलाइन ऑन अलाइनमेंट की रास्ते पे आप रहोगे. सो shall we start? Just give me a thumbs up in the chat box if you are ready with your pen, paper and everything. Chat box में thumbs up. Thumbs up in the chat box. Okay, reactions में भी दे सकते हो. Thank you Anagha, thank you Vikrant, Monica, yes Tina, thank you, thank you, thank you Rajesh. Okay, so I think majority of the room is ready. चलो, सबसे पहला रेजिस्टेंस. अच्छा, शुरू करने से पहले मुझे अपने एक एक रेजिस्टेंस के नाम बताओ सो दैट आई एंश्योर कि जो आपने नाम लिखे कम से कम वो सारे इंक्लूड हो. एक एक रेजिस्टेंस जो आपको अक्सर शो करता है उसके नाम यहाँ पे अगर आप चैट बॉक्स में लिखोगे तो आई विल मेक श्योर कि वो सारे रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं. जस्ट वन. अवॉइड डिबेट, इनकंसिस्टेंसी. कुछ लोग बता रहे हैं. और anybody who wants their resistance to be talked about, लिखोगे तो it will be better for me, easier for me to my ability to talk about difference of opinions. Yeah, very difficult. चलो, so I have some, मेरी already list में कुछ एक चीजें हैं, करीब 10-12 पॉइंटर्स होंगे मुझे ऐसा लगता है. Let's start. सबसे पहला, pleasing others too much. सबसे पहला रेजिस्टेंस. सो प्लीजिंग अदर्स टू मच इज नॉट दैट ऑफ अ रेजिस्टेंस, आई वुड से. पहला रेजिस्टेंस है डाउट, सेल्फ डाउट. अब ये बात कैसे करता है हमसे कि सब लोग तो कर पा रहे हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं. एनीथिंग विच एनीवन इन द वर्ल्ड कैन डू, व्हाई यू कैन नॉट. Anything which anyone in the world can do, why you cannot. So ये हमेशा कैसे बात करता है, मुझ में कुछ गड़बड़ी है, मुझ में कुछ गलत है. ये हमेशा ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको जब भी कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा, इट विल क्वेश्चन कि एम आई गुड इनफ, एम आई वर्थ इट. तो ये बेसिकली ये जो सेल्फ डाउट इट इज मोर ऑफ अ करेज इशू. करेज की कमी है, इसीलिए ये सेल्फ डाउट शो अप होता है. ये कैसे आपको इम्पैक्ट करता है, आपको होल्ड बैक करता है, आपको डिसीजंस नहीं लेने देता, आपकी वो जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिस होती चली जाती हैं बिकॉज यू डोंट मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. अब मोस्ट कॉमन साइंस इसके क्या है कि जो नॉर्मल लाइफ में आपको जो दिखेंगे वो किसको दिखेंगे, एनीबडी हु सीक्स फॉर वैलिडेशन.
जो कभी भी डिसीजन लेने से पहले 10 लोगों से बात करेगा, सेल्फ डाउट इज योर रेजिस्टेंस। फियर, अगर आपको हर काम करने से पहले डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं सही है या गलत है, सेल्फ डाउट इज द नेम ऑफ योर रेजिस्टेंस। अब अगर ये नहीं, इसका आपने यू डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ दिस, तो क्या होने वाला है? यू विल स्टे स्टक इन स्मॉलनेस। आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू अचीव वेयर यू वांटेड टू गो। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आप छोटा 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 तो काम करते रहोगे, लेकिन कभी भी बड़े डिसीजंस आप नहीं लोगे। सो यू विल ऑलवेज स्टक इन स्मॉलनेस, और समटाइम्स यू विल स्टार्ट रिजेक्टिंग योरसेल्फ, सेल्फ रिजेक्शन करने लगोगे आप। अरे मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझसे तो ये होता ही नहीं है, एंड आई डोंट नो व्हाट, हाउ टू डील विद इट। Okay, somebody is asking for the link for today. If you can give me a moment. Just a moment. Yes. How to deal with it? बहुत आसान तरीका है, सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। जितना ज्यादा आप सेल्फ कंपैशन करोगे, जितना ज्यादा अपने आप को जज करना बंद करोगे, as much as you work on your self awareness, this will be taken care of. अब self awareness कैसे आएगी? वही जो clarity की हम बात कर रहे थे, वही जो हमने व्हील किया है, वही जो मैंने मोनिका टॉक्ड अबाउट yesterday, पैशन टेस्ट जो हमने किया, इससे सेल्फ अवेयरनेस आती है। वो इंटेंशन सेटिंग, उससे सेल्फ अवेयरनेस आती है। एंड दिस सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंपैशन विल मेक अ शिफ्ट। You will start working on yourself. What I mean to say is, you start working for yourself instead of against yourself. जैसे आप compassion दिखाते हो, जैसी आप awareness आपकी आती है, तो आप अपने against खड़े नहीं होते। अदरवाइज तो क्या, वो डाउट में आप हमेशा अपने against खड़े हो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं करना चाहिए ही विन करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट टेकिंग अ डिसीजन, पोस्टपोनिंग अ डिसीजन ही हमारा गो टू मेथड होता है जब भी हम सेल्फ डाउट में होते हैं। पहला रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस, कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन ट्रैप, when you start comparing your chapter 1 with somebody else's chapter 9, somebody else who you are comparing yourself with, वो काम कर रहा है पिछले 10 साल से उस एक चीज पर कि अरे वो तो इतने पैसे कमा रहा है, वो तो इतना अच्छा काम करता है, वो तो ये हो रहा है, वो तो वो हो रहा है, लेकिन आपने अभी शुरुआत भी नहीं की है। बट स्टिल यू आर वरीड अबाउट कि मैं वो 9th चैप्टर पे 10th चैप्टर पे नहीं हूं, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूं। इसमें हमेशा हाउ दिस रेजिस्टेंस टॉक्स इज, आई शुड बी मोर लाइक देम। आप हमेशा अगर कंपेयर कर रहे हो कि जब वैसी हो जाऊंगी ना तब ये करूंगी, तो आप कंपैरिजन ट्रैप में। होता क्या है, व्हाट एक्शंस और व्हाट डिसीजंस यू टेक इन दिस, आप क्या करते हो, दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हो हमेशा। एंड व्हेन यू स्टार्ट कॉपीइंग somebody else, and when you start not being yourself, आप अपने आप को inadequate, अब आप अपने आप को स्टक फील करने लगते हो। आपको लगता है मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रही, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो। यू आर नॉट बीइंग योर डिफॉल्ट। आप कभी भी उतने अच्छे नहीं बन सकते। अ कॉपी कैन नेवर बी एज गुड एज द ओरिजिनल। वो मुझे नहीं पता, चाइना वाले अच्छी कॉपी बना लेते हैं शायद, लेकिन क्वालिटी खराब ही होती है उनकी भी। सो कॉपी कैन नेवर बी एज गुड एज ओरिजिनल। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपकी प्रोग्रेस पे क्या असर पड़ता है? आपकी एनर्जी धीरे 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 कम होती चली जाती, बिकॉज टू बी somebody else you have to try very very hard। आप बहुत हार्ड ट्राई करते रहते, तो आप थक जाते हो, इसीलिए आपकी प्रोग्रेस पे बहुत असर डालता है। कॉमन साइन क्या है इसका? अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो और आपको ये लगता है अरे इनके पास ऐसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, दिस इज अ वेरी कॉमन साइन। इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम on social media,
seeing what others are doing. भले ही मन में ये बोल रहा है कोई या नहीं बोल रहा है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, but still if you are spending a lot of time on social media just surfing through other people's life, कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं, वो क्या, if you are not learning anything, social media is not bad if you are learning there. लेकिन अगर आप सीख नहीं रहे हो, सिर्फ इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हो, नहीं उसके पास तो मुझसे आधी भी नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इतने पैसे कमा रही है, वो कौन आई थी अभी बिग बॉस में, somebody, शिवानी, वो शिवानी शी सच अ गांव की लड़की, लेकिन फिर भी वो इतना चल रही है सोशल मीडिया पे, मैं भी. You are on a comparison trap. Lose touch with your unique path. You lose touch with your unique path. आपको जिस भगवान ने जिसके लिए बना के भेजा, जो विलास कह रहे थे, अगर आप कंपैरिजन ट्रैप में फंसोगे तो you can never find that out. And comparison trap is more of a clarity issue. ज्यादा क्लैरिटी का इशू. एक बार क्लैरिटी आती है तो फिर कभी कभी करेज और कंसिस्टेंसी की दिक्कत बाद में आती है, लेकिन प्राइमरीली इट इज अ क्लैरिटी इशू. अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस. बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन भी टेस्ट होते हैं. एक स्ट्रेंथ असेसमेंट टेस्ट करते हैं हम लोग अपने कम्युनिटी में अंदर. सो वो स्ट्रेंथ असेसमेंट टेस्ट में आपको पता चलता है आउट ऑफ 24 स्ट्रेंथ्स विच आर योर डिफॉल्ट स्ट्रेंथ्स and where are your weaknesses, where does your weaknesses lie. And when you know that, तो आप कितनी अच्छी बात है ना, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है और कहाँ आपकी वीकनेस है, तो आप यू कैन प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स और आप वो एरियाज स्किप कर सकते हो, वो एरियाज अवॉइड कर सकते हो जहां आप वीक हो. आई गिव दिस एग्जाम्पल टू एवरीबडी. जब भी ये स्ट्रेंथ की बात आती है, देयर इज अ एक्टर, क्या नाम है, आशुतोष राणा. आशुतोष राणा एक एक्टर है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड बी नोइंग हिम. ही डिड नॉट न्यू इंग्लिश. उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी. बिलोंग टू अ वेरी वेरी स्मॉल विलेज ऑफ मध्य प्रदेश. रादर मेरा जहाँ घर है, मेरा जहाँ नेटिव प्लेस नहीं, नॉट ससुराल वाला जो घर है, उसी गांव के रहने वाले हैं वो. सागर, ये स्नेहा सागर, बल्कि गाडरवारा जगह का नाम है, वहां के हैं वो. तो अंग्रेजी उनको आती नहीं थी. कैन यू सी हिम टुडे? अगर आप आज उनके पास में जाओगे, विल यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश? नेवर. उसने अपनी स्ट्रेंथ को इतना बड़ा कर लिया है दैट उसकी वीकनेस हमको नजर ही नहीं आती किसी को भी. हाउ वंडरफुल इज दैट. और जब आपको ये पता चलता है, यू स्टार्ट थ्राइविंग. सो जैसे ही आपको पता चलेगा, टूल एंड ट्रिक क्या है कि डू दोज असेसमेंट टेस्ट्स. नंबर 3, सुपर ह्यूमन सिंड्रोम. सुपर ह्यूमन सिंड्रोम. मैं सुपर ह्यूमन हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है. सो व्हाई आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ कर सकती हूँ. 1 रूम में ज्यादा लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, एंड 2 मी बीइंग फीमेल, मेरा डिफॉल्ट कर सकती हूँ वाले एग्जाम्पल्स है इंस्टेड ऑफ कर सकता हूँ वाले एग्जाम्पल्स. एंड आई कैन रिमेम्बर वेरी वेल, मेरी कोच ने बहुत ही मजेदार बात एक दिन बोली कि हम फीमेल्स को तो बहुत आदत है, कहीं बड़ी जगह में गए जहाँ पे ही और हिज करके हमें एड्रेस किया जा रहा है, एंड वी डोंट फील अनकंफर्टेबल अबाउट दैट. लेकिन मेल को अक्सर ये आदत नहीं होती कि उसको शी या हर करके कोई एड्रेस करे. सो दिस बीइंग अ बिगर रूम ऑफ फीमेल, तो जस्ट bear with me and cooperate with me for all the male members in the room. Superhuman syndrome, ठीक है. So how it talks to you कि I don't need anybody help, I need to do it all, मुझे सब कुछ ही करना पड़ेगा, सब कुछ मैं करूंगी, कोई और नहीं कर सकता. किस तरह से इम्पैक्ट करेगा आपको ये? आप ओवर कमिट करोगे, आप बर्नड आउट हो जाओगे लाइफ में, आप थके रहोगे हमेशा. क्यों? क्योंकि आप हर चीज के लिए हाँ बोल रहे हो. somebody was saying pleasing others too much, Ashu. So Ashu, this is सुपर ह्यूमन सिंड्रोम. हम प्लीज करने के लिए हम हाँ बोल देते हैं हर किसी को. सो व्हेन वी ओवर कमिट, अल्टीमेटली इन द लॉन्गर रन वी विल बर्न आउट. और हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं प्रूव आवरसेल्व्स, कह रहे हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हम परफेक्ट है, हम परफेक्ट है. अगेन दिस इज ऑल्सो क्लैरिटी इशू ऑन दी मोटा मोटा लेवल. कैसे आपकी परफॉर्मेंस को ये इम्पैक्ट करता है? कॉन्स्टेंटली आप एग्जॉशन में रहते हो, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हो, इतना प्रूव कर रहे हो अपने आप को, भले आप फिजिकली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेंटली आप कर रहे हो.
सो आप कांस्टेंट एग्जॉशन में रहते हो, कांस्टेंट एक तरीके से रिजेंटमेंट में रहते हो, डिप्लीटिंग एनर्जी रहती है आपकी हमेशा, आप कभी बहुत अलाइव नहीं नजर आओगे, आप हमेशा थके हुए नजर आओगे अगर आप सुपर ह्यूमन सिंड्रोम। सो अभी आपसे बात करते करते मुझे एक अपना सुपर ह्यूमन याद आ रहा है जो मेरे एक रिलेशन में है, आई विल नॉट मेंशन कौन है। सो कॉमन साइन क्या है, किस तरह से आप समझ पाओगे कि हाँ इफ दिस इज यू से येस टू एवरीथिंग। किसी ने आपसे बोला कि आज शाम को चलोगे मेरे साथ, हाँ चलते हैं, फिल्म देख लें, हाँ देखते हैं, आज ये कर दोगे मेरे लिए, हाँ करते हैं। एंड देन a lot of times you are not able to do that. You say yes to everything. You are scared of criticism. अगर ये भी है आपके साथ में कि लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई गलती ना हो जाए, again this is a superhuman syndrome because we are all humans and being a human गलती होगी हमसे। जब भी हम कोई स्टेप लेंगे कहीं ना कहीं पहुंच के, कई बार नई चीज शुरू करते हैं ज्यादा गलतियां होती हैं, व्हेन वी डू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम गलतियां कम होती हैं, बट आई वुड नॉट से कि गलतियां होंगी नहीं। जब आप टॉप पे भी पहुंच जाओगे तब भी गलतियां होंगी। क्या नरेंद्र मोदी ऑन द टॉप गलत डिसीजंस नहीं ले सकते? अब डेफिनेटली ले सकते हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप इतने जो डिसीजंस ले रहा है सारे ठीक ही ले रहा है क्या? No. गलतियां होंगी। व्हेन यू डू एनीथिंग मिस्टेक्स will happen. Now again इसमें भी बर्नआउट ज्यादा होता है, और बर्नआउट एक तरीके से सुपर ह्यूमन सिंड्रोम में आपकी बेसलाइन ही बर्नआउट हो जाती है, आप हमेशा ही बर्नड आउट रहते। सो ये इसका क्लासिक सिंड्रोम है कि अगर आप हमेशा बर्नड आउट रहते हो, हमेशा ही लो इन एनर्जी रहते हो, आप सुपर ह्यूमन सिंड्रोम में हो। टूल्स एंड ट्रिक्स क्या है? अलाइनमेंट पे फोकस करो, बैलेंसिंग पे नहीं। मतलब 8 घंटे आराम, 8 घंटे काम और 8 घंटे नींद, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने आज 2 घंटे अपने ऊपर काम किया तो 2 घंटे मुझे फैमिली को भी देने रहेंगे। नो, अलाइनमेंट। देर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस इन लाइफ। बैलेंस कुछ भी नहीं है लाइफ में। आपका बॉडी को अगर बीच में से आधा कर दें तो दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी भी डिफरेंट प्रोपोर्शंस में है। किसी हाथ का ये छोटा होगा, किसी का थोड़ा मोटा होगा। उंगलियां जो आपकी हैं वो सारी एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है। सो देर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस इन लाइफ। रादर अगर आप जूता जब खरीदने जाते हो, यू शुड बी नोइंग एक पैर में परफेक्ट फिट होता है, दूसरे में या तो टाइट होता है या तो ढीला होता है हमेशा। सो देर इज ऑलवेज imbalance is the beauty. So we need to have alignment, not the balance. And when you create this balance in life, not balance, this alignment in life, you live with intention. आप प्रेशर में जीना बंद कर देते हो and you live with intention. इन तीनों में से सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा मतलब if you can relate with any of it, just tell me in the chat box. किसी को लगा है कि किसी में आप रिलेट कर रहे हो? जिन्होंने कैमरा ऑन किया है वो दिखा भी सकते हैं, जैसे मोनिका दिखा रही है। जिन्होंने नहीं ऑन किया है वो ओके, सब लोग 3 वाले में ही हैं, सुपर ह्यूमन, सारे सुपर ह्यूमन है मेरे रूम में। मैम व्हाट डिफरेंस बिटवीन ड्यूअलिटी एंड बैलेंस? ओ साकेत, आई विल एड्रेस दैट। फोर्थ, नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता। मुझे तो एक फॉर्म भी भरना होगा ऑनलाइन तो पहली बार में तो वो सबमिट होगा ही नहीं। कुछ भी ठीक नहीं होता मेरी लाइफ। क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि आप हमेशा उन्हीं चीजों पे फोकस करते हो विच आर ब्रोकन, जो हमने पहले दिन बात की थी। वेयर आर यू फोकसिंग ऑन? उस रिलेशनशिप में जो टूटा हुआ है वहां फोकस कर रहे हैं, और उस रिलेशनशिप में वन थिंग दैट इज गुड हम वहां फोकस कर रहे हैं। अगेन इन लोगों के साथ में परेशानी होती है, मोमेंटम नहीं बनता इनका। तो ये एक मोर ऑफ अ कंसिस्टेंसी इशू है, मोमेंटम नहीं बन पाता आपका क्योंकि बायस नेगेटिविटी की तरफ। अगर छोटा सा कुछ गलत हो गया वो फंस गया आप दिमाग में, वो जो उतना सारा अच्छा हुआ है वो नहीं दिख रहा। अगर आपकी वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं लाइक नेवर एंड ऑलवेज, आप इसके शिकार हो। इट नेवर हैपन्स टू मी, इट ऑलवेज हैपन्स टू। अगर आप एक्सट्रीम पे ही बात करते हो, वो तो हमेशा ही ऐसा करता है, वो तो कभी मुझे नहीं समझता।
आप नेगेटिविटी बायस का शिकार हो। जो लोग इसका शिकार हैं, दे विल लूज होप वेरी सून, दे विल लूज होप इन लाइफ, और बिकॉज होप खत्म हो गया है, दे स्टॉप ट्राइंग, बिकॉज होप खत्म हो गया, दे स्टॉप ट्राइंग। और इनके लिए बहुत ही बढ़िया एंड वेरी इजी जो चेंज इन एवरीडे रूटीन है, यू स्टार्ट जर्नलिंग। इसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर रोज सोने से पहले कम से कम 3 चीजें वो लिखो जो आज अच्छी हुई हैं। You will start focusing on the things, you will start noticing what is going right. और धीरे 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 वो फोकस शिफ्ट होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आज लिखोगे और कल एकदम नेगेटिविटी बायस खत्म हो जाएगा, नो। वो 100 डेज तो लेके चलना है, भले ही मेरे साथ चलो मेरे बगैर चलो, लेकिन 100 दिन तो चलना ही चलना है डेफिनेटली। नंबर 5, इमोशनल अवॉइडेंस। Emotional avoidance. People avoid emotions. For this, I'll be specially and mainly talking to the males, men in the room. Often men avoid their emotions. कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के को रोना नहीं चाहिए, राइट? तो we have been trained to suppress our emotions, especially men in the room. So अगर आपको ऐसा लगता है कि I can't feel anything, मुझे खुशी में मजा नहीं आता और दुख में दुख भी नहीं होता उतना ज्यादा, आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे अगर आप इसका इमोशनल अवॉइडेंस का शिकार हो। इफ विमेन कैन रिलेट, विमेन कैन ऑल्सो हैव दिस, बट मेन हैव दिस वेरी वेरी ऑफन। इमोशनल बिल्टअप बड़ी जल्दी होता है, ये डिस्कनेक्टेड रहेंगे सेल्फ से, और इसका सबसे बड़ा जो ये कैसे डिस्प्ले या रिफ्लेक्ट होता है, इमोशनली एक्सप्लोड हो जाओगे आप। अचानक एक दिन आप एक्सप्लोड करते हो किसी भी छोटी सी बात पे, एंड देन यू गो बैक और सोचोगे यार गलत ही कर दिया, फालतू इतना क्यों चिल्ला दिया, इतना चिल्लाने वाली तो कोई बात नहीं थी। यू आर पेशेंट ऑफ योर रेजिस्टेंस नेम इज इमोशनल अवॉइडेंस। क्योंकि जब उसको इमोशन को फील करना है, राइट डाउन अ लाइन, write down a very powerful line. Unless you allow yourself feel that emotion, unless you allow yourself feel that emotion, how will you align it? जब तक फील नहीं करोगे कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। सो इसका जो तरीका है टू कम आउट ऑफ इट इज, इसको कहते हैं नेम इट टू टेम इट। जब आपको बुरा लग रहा है उसको नाम दो। आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग रिजेंटफुल, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग इमोशनल, तो वो साधु बन जाएंगे। साधु नहीं बनेंगे, इमोशन फील करने लगेंगे, सो एक्सप्लोड नहीं होंगे। ओके, सो जो भी फील कर रहे हो, जो भी इमोशन है, उसको नाम देना सीखो। जैसे ही नाम दोगे योर जर्नी विल स्टार्ट, एंड जैसे ही आप नाम देना सीख जाओगे यू विल stop reacting to the situations, rather you will start responding to the situations. Next, all or nothing. इसके बारे में हमने हल्का सा कल भी बात किया था। all or nothing, या तो मुझे 5 किलोमीटर चलना है या चलना ही, घर से निकलना ही नहीं है। If I can't do it perfectly, why even bother starting? If I can't do it perfectly, why even bother starting? तो आप क्या करते हो, हमेशा डीले करोगे या फिर आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। ये कंसिस्टेंसी का इशू है। या तो आप डीले करोगे, आप बहुत दिन तक काम करोगे ही नहीं, या फिर करोगे आज फिर आप रुक जाओगे क्योंकि अब आज तो पूरा कर नहीं पा रहे, आज तो 5 किलोमीटर चल नहीं जाएंगे, आज बिल्कुल ही नहीं जा रहे, अब आज नहीं गए थे। सो इसीलिए क्या होता है, न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फॉर अ फैक्ट। फेब्रुवरी आते आते 90% ऑफ द पीपल स्टॉप देयर रेजोल्यूशंस। फेब्रुवरी आते आते, दिसंबर नहीं आना है, फेब्रुवरी में ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल और नथिंग। आज 5 किलोमीटर नहीं चल पाए, 2 दिन नहीं चल, अरे ठीक है अब 1 तारीख से करेंगे, अरे चलो अब मंडे से करेंगे, आज थर्सडे तो आ ही गया है, थर्सडे को नहीं जा पाए तो फ्राइडे सैटरडे संडे भी नहीं जाते, अब मंडे से फिर चालू करेंगे, एंड सो यू स्टॉप लाइक दिस।
सो व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट बिग. आप खूब जल्दी जोर शोर से शुरू तो करते हो लेकिन बहुत जल्दी रुक जाते हो. वो मोमेंटम आपको कभी भी मिल नहीं पाता. और तरीका इसका क्या है? छोटे छोटे स्टेप्स लेना. सो इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस ऑल और नथिंग, माय सजेशन इज जब भी आप कोई नया काम करना शुरू करते हो उनको इजी, मीडियम, हार्ड, उसमें बड़े काम को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करो और उनको लेबल करो इजी, मीडियम, हार्ड. स्टार्ट डूइंग द इजियर थिंग्स, उससे मोमेंटम बन जाएगा. देन स्टार्ट मीडियम एंड देन स्विच टू हार्डर वंस. एक और रूल है, इसको कहते हैं 5 मिनट रूल. 5 मिनट रूल. 5 मिनट तक फोकस करो, फोकस के साथ काम करो, फिर टेक अ ब्रेक, देन कम बैक अगेन. अब ब्रेक वो आधे घंटे का नहीं लेना है 5 मिनट काम करने के बाद में. एक आध मिनट का सिर्फ उठे और एक चक्कर लगा के वापस आ गया, देन अगेन फोकस फॉर 5 मिनट. अब होता क्या है, इससे फायदा क्या होगा कि जो प्रोग्रेस है दैट फील्स अचीवेबल. आपने छोटे छोटे टारगेट बनाए, इजी इजी कर रहे हो, तो वो अचीवेबल दिखती है, वो सस्टेनेबल दिखती है. देन यू gain that momentum, then gain that consistency. Now comes fear fog. Fear fog 7th है ये, fear fog. अब fear के साथ मैंने fog क्यों यूज किया है? Because अक्सर fear is not a fear. Fear तो सिर्फ outside पे दिख रहा है, अंदर कुछ और है, इसीलिए इसको fear fog कहते हैं हम. जब आप अक्सर बोलते हो I don't know what to do, वो fear fog है. आप हमेशा इनडिसीजन में स्टक रहोगे. क्लैरिटी का इशू है ये. अगेन इनडिसीजन में स्टक रहोगे या फिर मिसअलाइंड चॉइसेस करोगे. लाइक येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट अ शिप. अगर शिप के पास क्लैरिटी नहीं है तो क्या होगा? वो जाएगी कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, लेकिन वहां नहीं जाएगी जहां जाना है. तो छोटे छोटे मिसअलाइंड एक्शंस आप लेते रहोगे हमेशा. प्लानिंग आप अवॉइड करते हो. इफ यू अवॉइड प्लानिंग कि ट्रिप पे जाना है, बोले ठीक है वो तो सुबह ही पैकिंग कर लेंगे. अगर ऐसा है, दिस इज अ फियर फॉग. इफ यू अवॉइड प्लानिंग, इफ यू जंप बिटवीन द आइडियाज. बिटवीन द आइडियाज का मतलब क्या है? somebody else is doing anything और बीच में अपन भी जंप कर ली, अरे चलो यही करते हैं, ये अच्छा काम है. फियर फॉग. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द फियर फॉग, अक्सर आप सर्वाइवल मोड में रहोगे, ग्रो नहीं करोगे. सिर्फ सर्वाइवल हो रहा है. खाने पीने को तो बढ़िया मिल रहा है बस, लेकिन सर्वाइवल ही मोड है. वो ऐशो आराम नहीं है लाइफ में. अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट अ फैमिली. तो जब मैं फैमिली के बारे में बात करती हूँ तो हम, क्योंकि फॉग तो सिर्फ आपको है ना, तो आप उस मोड में हो. आपका हस्बैंड शायद अच्छे मोड में होगा तो आप ऐशो आराम कर रहे होगे, बट ऑन योर ग्राउंड्स आप सिर्फ सर्वाइवल ही कर रहे हो. रिलेशनशिप में आप सिर्फ सर्वाइवल कर रहे हो, हेल्थ में आप सिर्फ सर्वाइवल कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप सिर्फ सर्वाइवल कर रहे हो. एवरीवेयर यू आर जस्ट सर्वाइविंग. कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा. अगेन इसमें भी जर्नलिंग बहुत काम आती है. अगर आप लिखना शुरू करते हो, क्लैरिटी के लिए सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग. वैसे एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी इफ यू वांट. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ वेरी छोटा सा वेरी पावरफुल एग्जांपल आई वुड से. अभी मैं आपसे पूछूं 2+2 कितना होता है? 4 सबको पता है. 4+4 कितना होता है? 8. एनीबडी कैन टेल. लेकिन मैं बोलूं 3486 प्लस 8964, ये कितना होता है? आसान है ये भी, लेकिन जब आप इसको लिख लोगे ये ऐसे हो जाएगा. अगर आप सोचोगे दिमाग में करना है, मुश्किल लगती रहेगी. सो राइटिंग इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया. जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो यू गेट क्लियर डायरेक्शंस. और एक और बहुत मजेदार इसमें टिप है, डिफाइन योर व्हाई. आस्क योर सेल्फ व्हाई. आई विल गिव यू एग्जाम्पल. मेरे पास अभी कुछ ही दिन पहले एक स्टूडेंट आया, मैम मुझे ना एंजाइटी होती है, डर लगता है स्टेज पे कुछ भी बोलने से. ओके, क्यों डर लगता है? सो दिस टेक्निक इज नोन एज 5 why टेक्निक. 5 बार में जब आप वाई पूछोगे तो आपको जवाब मिल ही जाता है, ऐसा माना जाता है. नहीं मिले बाय चांस तो आपको एक आध बार और पूछ लेना है. क्यों डर लगता है? लोग हंसेंगे. क्यों हंसेंगे लोग? मैं कुछ गलती कर दूंगा तो. क्यों कर दोगे तुम गलती? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है. क्यों तुमने प्रैक्टिस नहीं किया? सो अल्टीमेटली जो स्टेज फियर है वो फॉग है फियर का. पीछे क्या है? मैंने प्रैक्टिस नहीं किया. पीछे क्या है? मैंने तैयारी नहीं की.
पीछे क्या है, मुझे इस विषय के बारे में पता नहीं है. सो व्हेन यू नो द रीजन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, राइट? नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को कहते हैं लोन वोल्फ मोड. लोन वोल्फ मोड, अकेले ही काफी है, मैं अकेला ही काफी हूं. कौन सी पिक्चर का डायलॉग था, कुछ था ना ऐसा, याद नहीं मुझे. I'll figure out myself. If you are in the mode of I'll figure out myself, you are so lone wolf syndrome से आप ग्रसित हैं. आपको लगता है जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है वो खुद ठीक हो जाएगा, टाइम से ठीक हो जाएगा, या फिर मैं अपने आप सीख लूंगी या सीख लूंगा. तो ऐसे लोग अक्सर क्या होता है, ये आइसोलेटेड फील करने लगते हैं अपने आप. एंड ये अगेन दिस इज ऑल्सो इशू ऑफ करेज, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू आस्क फॉर हेल्प, यू आइसोलेट योरसेल्फ. इनकंसिस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स रहेगा, लोनलीनेस रहेगी. इफ यू डोंट शेयर योर स्ट्रगल्स विद अदर्स, अगर आपको अपनी स्ट्रगल किसी और को बताने में, समझाने में सेकंड थॉट देना पड़ता है, यू आर अ लोन वोल्फ. यू आर अ लोन वोल्फ. अब इससे होता क्या है, बर्नट आउट हो जाओगे आप. बर्नट आउट भी हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा. पीछे जो हमने पढ़े हैं उसमें कई बार क्या है, आप बर्नट आउट होता, आप बोल रहे हो अरे मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मैं बहुत थक गई, अरे अरे. यहाँ पे आप इतने ज्यादा अकेले हो, अकेले खुद ही करना चाहते हो कि किसी को पता भी नहीं चलेगा. एंड देन यू लूज मोटिवेशन. बेस्ट तरीका इससे बाहर निकलने का है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो कोई अपने साथ. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, या फिर ज्वाइन अ कम्युनिटी. व्हेन आई से ज्वाइन अ कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं. रविशंकर इज अ कम्युनिटी, कोई जिम की कम्युनिटी हो सकती है, कोई आपका लाफिंग क्लब हो सकता है, कोई आपका कोई किसी कोच की कोई कम्युनिटी हो सकती है. एनी कम्युनिटी, ज्वाइन अ कम्युनिटी वेयर यू कैन ओपन अप योरसेल्फ. और जैसे आपको सपोर्ट मिलना शुरू होता है, थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. देन जो अगला रेजिस्टेंस है वो है परफेक्शनिज्म. परफेक्शनिज्म, इट इज नॉट गुड इनफ. इट इज नॉट गुड इनफ, ये लैंग्वेज है जो ये रेजिस्टेंस बोलता है कि अभी सही नहीं है, अभी सही नहीं है, अभी और रुको, अभी और काम करना बाकी है. अरे ये जो पीपीटी है ना, इसका डिजाइन गड़बड़ है, अरे इसमें फॉन्ट ऐसे है, अरे ये अरे. असर क्या है, यू डिले लॉन्चिंग योरसेल्फ. ट्रैवलिंग, ओके वंशिका, ओके. सो यू डिले लॉन्चिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को लॉन्च करना, वो रिचा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. सो अपने आप को लॉन्च करना आप डीले करते रहते हो. अपनी वो डांस क्लास जो आपको शुरू करना है, वो आप 10 साल बाद शुरू कर पाते हो, जबकि यू आर अ वंडरफुल डांस टीचर. यस. वन, आप डीले करते रहते हो अपने आप को लॉन्च करना. टू, आप ओवरवर्क करते हो. आप ओवरवर्क करते हो. आई टेल यू समथिंग हियर, दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, none of them are most perfect people of the world, but all of them are most consistent people of the world. They launch themselves knowing कि गलतियां होंगी और मैं रास्ते में सीखता चला जाऊंगा. ये भी अगेन बर्नट आउट रहते हैं क्योंकि ये बहुत काम कर रहे हैं और लॉन्च हो नहीं पा रहे, उससे जो रिटर्न मिलना है वो मिल नहीं पा रहा, वो जो पैसा कमाना है वो कमा नहीं पा रहे, जो हेल्थ पे दिखना है वो देख नहीं पा रहे. सो ये भी हमेशा बर्नट आउट ज्यादा नजर आते हैं. अगर इफ यू आर समबडी हु कीप्स ऑन रीवर्किंग ऑन द थिंग्स, जैसे आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन जो प्रेजेंटेशन देने के बाद भी अपनी पीपीटी ठीक करती है. सो इतना परफेक्शनिज्म. सो अगर आप बहुत ज्यादा रीवर्क करते हो एंडलेसली एंड रेयरली फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, अरे वाह मैंने आज बहुत अच्छा किया, सो यू आर अ परफेक्शनिस्ट. आपको कभी नहीं लगेगा दैट यू हैव अराइव्ड. यू विल नेवर फील एज इफ यू हैव अराइव्ड.
कि हाँ यहीं पहुंचना था, बस पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आप वो परफेक्शनिज्म के चक्कर में लगे हो, आप करते तो जा रहे हो लेकिन वहां पहुंच मतलब आपको फील ही नहीं हो रहा दैट यू नाउ इट इज इनफ। इसमें इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? वीकली चेक इन्स करो, सेल्फ रिकॉग्निशन करना शुरू करो, कैलेंडर बना लो वीकली, अगर इतना हो गया हफ्ते भर में तो इट इज इनफ। एंड सेल्फ रिकॉग्निशन यानी just praise yourself of doing anything. If you are doing anything for the first time, for the second time, so I went for a TED talk last month, I think. So जब मैं वापस आई तो एक दिमाग ने बोला कि अरे इसमें ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, फिर दूसरे दिमाग ने तुरंत बोला कि नहीं, एक हफ्ते तक नहीं, एक हफ्ते तक कोई असेसमेंट नहीं करना है। सो डोंट असेस योरसेल्फ फॉर अ वीक, आफ्टर दैट यू कैन। फिर क्योंकि गलतियां तो ढूंढना है ना, कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हो करना है, लेकिन लॉन्च होने से पहले नहीं, बाद में। सो अब होगा क्या ये करने से? पर्पस जो है आपका वो फॉरवर्ड, आपको इट विल पुल यू फॉरवर्ड। सॉरी कहीं गड़बड़ हो गया। सो यू स्टार्ट ऑनरिंग योर एफर्ट्स, क्यों? बिकॉज आप वीकली चेक इन करोगे, आप रिकग्नाइज करोगे अपने एफर्ट्स, तो आप ऑनर करने लगोगे अपने आप को और उससे बिल्ड होगा मोमेंटम। अब नाउ लेट मी टॉक अबाउट इसी का एक सौतेला भाई मैं कहती हूँ इसको, स्टेप ब्रदर, प्रोक्रेस्टिनेशन। परफेक्शनिज्म का स्टेप ब्रदर है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्यों स्टेप ब्रदर है? क्योंकि परफेक्शनिज्म क्या थोड़ा टाई वाई लगा के आया है, बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के, मेकअप वेकअप करके, सब कुछ करके आया है, तो वो ऐसा दिख रहा है क्या, अरे वाह आपका स्टैंडर्ड हाई कर रहा है, अरे परफेक्ट नहीं हुआ इसीलिए नहीं कर रहे। जबकि प्रोक्रेस्टिनेशन और परफेक्शनिज्म दोनों में अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा है कि आप लॉन्च नहीं कर रहे, और प्रोक्रेस्टिनेशन वाला बोल रहा है मैं लेजी हूं। तो बस इतना ही अंतर है, वो सेल्फ एस्टीम बढ़ा रहा है आपकी, ये सेल्फ एस्टीम घटा रहा है, सिर्फ यही अंतर है। वो थोड़ा सूट बूट पहने हुए, ये थोड़ा कैजुअल है, पजामा पहन के बैठा हुआ बोल रहा है कि अरे नहीं करेंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट सेम है, यू डोंट लॉन्च योरसेल्फ। अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन भी अगर आप करते हैं तो यू हैव लॉट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड स्टैग्नेशन इन लाइफ। पीपल हु प्रोक्रेस्टिनेट, उनके ड्रीम्स जैसे ही रह जाते हैं। ड्रीम्स स्टे ड्रीम्स। Procrastination, if you are a procrastinator, you need to understand that purpose over pleasure. Thank you, Rajesh. Purpose over pleasure. वो जो शॉर्ट टर्म, जो हमने शुरू में कॉस्ट की बात की थी, वो शॉर्ट टर्म कॉस्ट, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर को ना देख के लॉन्ग टर्म विजन रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखोगे देन यू कैन गेट आउट ऑफ दिस प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप। मीनिंग फर्स्ट एक्शन लेना शुरू करो। मीनिंग फर्स्ट मतलब इस, अगर मैं ये करूंगी या नहीं करूंगी, करूंगा या नहीं करूंगा, तो इससे मेरे लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपको हर एक्शन लेने के और नहीं लेने के पहले पूछना है। सो पर्पस देन पुल्स यू फॉरवर्ड। अगर आप अपना पर्पस फोरफ्रंट पे रखते हो तो वो आपको आगे बढ़ाता चला जाता है, ऑल्दो यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं डिजर्वेबिलिटी। डिजर्वेबिलिटी, डाउट। जब आप डाउट करते हो अपनी डिजर्वेबिलिटी पे, डू आई डिजर्व दिस, डू आई डिजर्व दिस। एंड आई डोंट नो इस एज की फीमेल में कितना है, अदरवाइज मेरी जो मॉम की एज की फीमेल्स थी उन सब में बहुत ज्यादा डिजर्वेबिलिटी का इशू था। कैसे? मुझे अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, अरे नहीं वो बच्ची की फीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा। घर में खाना खाने की बात आई, पहले सब गरम गरम खा ले, मैं बाद में खा लूंगी, बचा नहीं तो कुछ और भी, वो फिर दोबारा बनाया भी नहीं, थोड़ी सी चटनी के साथ ही खा लिया, डिजर्व भी नहीं करती मैं, ये सोच रही हूँ। सो ये डिजर्वेबिलिटी का इशू, इस चीज की इंपॉर्टेंस, इस पैसे की, इस मनी, और इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट टाइम, मनी एंड एनर्जी, ऑल थ्री थिंग्स। ये तीनों रिसोर्सेस के बारे में इफ यू are suffering from a deservability doubt, you will always think somebody else deserve it more than me. मेरी एनर्जी किसी और को चाहिए मुझसे ज्यादा, मेरा पैसा किसी और को चाहिए मुझसे ज्यादा, मेरा टाइम किसी और को चाहिए मुझसे ज्यादा। अगेन
ये जो लोग हैं जो डिजर्वेबिलिटी डाउट से गुजर रहे हैं वो भी सर्वाइवल मोड में है हमेशा, एंड उनकी यही लैंग्वेज होगी। बच्चों को ज्यादा जरूरत है, पति को ज्यादा जरूरत है, पत्नी को ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज मेन इन दी रूम विल फील ऑफेंडेड कि अरे हम नहीं सोचते क्या फैमिली के बारे में, आप भी सोचते हो, बिल्कुल सोचते हो। एंड आई वुड से इन दैट सेंस जब पैसा कमाने की बात आती है, यस मेन डू हैव द मोस्ट, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, और वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। दैट इज वाई दे डू नॉट indulge in a lot of self care. फीमेल तो फिर भी पार्लर जाती होगी, मुझे नहीं लगता कोई फीमेल होगी दुनिया में जो पार्लर नहीं जाती होगी, बट वेरी फ्यू मेल दे गो टू द पार्लर। एटलीस्ट हम पार्लर जाके तो सेल्फ केयर करते, मेल तो वो भी नहीं करते, वो सिर्फ सैलून में जाके कट कराने जाते हैं, बाकी ज्यादा मोस्ट ऑफ देम, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम। आपका लैंग्वेज क्या होगा? यू नेवर शो अप फॉर योर सेल्फ। आप कभी अपने लिए खड़े होकर बात नहीं करते, मुझे चाहिए, मैं चाहती हूं, मेरा, मुझे इंपॉर्टेंट है ये, आज मुझे छुट्टी चाहिए, आज मैं थकी हुई हूं। नो, यू विल नॉट डू इट। सो जो यहां तरीका है बाहर निकलने का इस ट्रैप से, वो है रिफ्रेम करो। सेल्फ इन्वेस्टमेंट की जगह उसको बोलो सेल्फ रिस्पेक्ट। Reframe your vocabulary. Instead of calling it an investment, call it a respect. Because I have earned it, I deserve it. This is, for me, this is self-respect. When you do this, you allow yourself to receive more. जब आप अपने आप को डिजर्वेबल बनाते हो, you deserve more, you receive more. You expand your receiving portal. जब तक आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानोगे, वो रिसीविंग पोर्टल बंद रहेगा, एंड देन यू विल नॉट रिसीव अ लॉट। एंड नाउ आई थिंक द लास्ट वन, ब्रेक थ्रू फियर। ब्रेक थ्रू फियर। अब ये ब्रेक थ्रू फियर बोलता है, अगर मैं बदल गई, अगर मैं बदल गया तो क्या होगा, मेरे जो साथ वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चे मुझसे कनेक्ट करेंगे या नहीं, मेरी वाइफ, नॉट वाइफ या हस्बैंड, मेरा स्पाउस मेरे साथ रह पाएगा कि नहीं, मेरे फ्रेंड्स कहीं छूट तो नहीं जाएंगे। ब्रेक थ्रू अगर हो ही गया मुझे, आई बिकेम समबडी आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई अराइव्ड, और मैं कुछ ऐसा बन गई कि अब मुझसे कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो बोल रही अरे तुम तो बदल गई हो, राइट? ये भी बहुत बड़ा फियर है बहुत सारे लोगों को। सो व्हाट हैपेंस इज यू अनकॉन्शियसली सैबोटेज योर प्रोग्रेस। आपको पता भी नहीं चलता और अपनी प्रोग्रेस को आप सैबोटेज करते चले जाते हो, करते चले जाते हो। सो व्हाट हैपेंस इज यू स्टे सेफ। आप वो उस सेफ इन्वायरमेंट में तो रहते हो कि वही नौकरी, वही पति, वही बच्चे मे बी वही फैमिली आप उस सेफ एनवायरनमेंट में तो रहते हो, बट यू प्ले स्मॉल। और आप अक्सर अपने आप को स्टॉप कर लेते हो राइट बिफोर दैट बिग लीप। वो जो लीप ऑफ फेथ है ना, वो लेने से जस्ट पहले आप रोक लेते हो अपने आप को, बिकॉज सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस ये एक बटन क्लिक करना है। वो बटन क्लिक करते नहीं बनता कि कहीं बदल गए तो क्या होगा, सब कुछ छूट जाएगा। सो आपका जो नेक्स्ट लेवल है, फ्रॉम वॉट यू आर टू वॉट यू कैन बी, ऑलवेज रिमेन्स अ विश, इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। सो वो जो ब्रिज आपको क्रॉस करना है फ्रॉम वॉट यू आर टू वॉट यू कैन बी, इट ऑलवेज रिमेन्स अ विश, इट नेवर बिकम्स योर रियलिटी। और इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है इसको बीट करने का, विजनिंग योर फ्यूचर सेल्फ। कहते हैं विजुअलाइजेशन जो एक्सरसाइजेस होती है ना, दैट आई हैव बिकम दिस, मैं स्टेज पे से बोल रही हूँ, माइक मैंने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, दूसरे लोग मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। राजेश मैंने मिस कर दिया, आपने किस बात पे ये लाफिंग इमोजी भेजा था, कोई बात नहीं, मे बी सम टाइम देयर। तो वो विजुअलाइजेशन इज अ गुड एक्सरसाइज, एंड आई विल
थोड़ा सा समय है हमारे पास, मैं एक कहानी सुनाती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ गई। सो महात्रेया एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं, एंड आई विल टेल यू दैट स्टोरी। वो आप कहीं इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको मिल भी जाएगी, महात्रेया कहलाते हैं। सो ही टेल्स अ स्टोरी कि ये जो वो होते हैं ना, टिड्डे कहलाते हैं, इसके, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट, छोटा सा कीड़ा होता है जो पानी में रहता है। सो इफ एनीबडी हैज दैट अनपोस्टेड लेटर, छोटा सा जीव जंतु होते हैं जो पानी में नीचे सतह पे रहते हैं, ठीक है, सो एकदम नीचे रहते हैं। अब व्हाट हैपेंस इज, उनकी कॉलोनी की कॉलोनी है, उनमें से कोई एक आध कभी वो कमल वाली जो वो होती है ना डंडी, उसकी स्टेम, उस पे से ऐसे चढ़ के ऊपर जाता है और ऊपर जाके गायब हो जाता है, फिर वो कभी लौट के नहीं आता। तो एक दिन उनकी सबकी मीटिंग होती है, सारे जो पंच लोग होते हैं वो बैठते हैं और बात करते हैं कि अब इसके बाद जब भी कोई ऊपर जाएगा ना, वो वापस आके हमको बताएगा जरूर। ठीक है, बड़ा तय हो जाता है। अब ये तय होने के बाद में मजे की बात ये होती है कि वो जो सरपंच वाला पंच होता है वो ही वहां से चढ़ के ऊपर जाता है, और ऊपर जाके वो जैसी कमल के उस पे पत्ते पे, बड़े से पत्ते पे बैठ जाता है, उसको धूप लगती है, आ और थोड़ी देर तक और वहां रहता है ना, उसके वो पंख निकल आते हैं, एंड देन वो उसको जब फ्लटर करता है पंखों को, बिकॉज गीला है ना अभी, फ्लटर करता है, उसमें पानी गिरता है, और पानी गिरता है वो अचानक उड़ने लगता है, एंड देन ही इज फ्लाइंग 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 फ्लाइंग, वो ऊपर आसमान से देख रहा है नीचे, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है उसको सब कुछ, एंड ही इज अमेज्ड, वाओ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। फिर अचानक उसको याद आता है कि अरे मैंने प्रॉमिस किया था नीचे अपने साथ वालों को, चलो मैं बताता हूँ उनको जाके। वो नीचे वापस आता है, अब वो हल्का हो गया है, पहले वो हैवियर था, छोटा था, वो जो वॉल्यूम और उसका रेशियो होता है, साइज और वेट का रेशियो होता है, वो उसका बढ़ गया है, तो वो हल्का हो गया। वो बहुत कोशिश करता है अंदर जाने की, नहीं जा पाता, बहुत कोशिश करता है अंदर जाने की, नहीं जा पाता। सो देन ही अंडरस्टैंड्स कि इसीलिए लोग वापस नहीं आ पाते। वन, एक तो हम जा ही नहीं सकते वापस, इफ यू हैव सीन समथिंग, आपने अपना वो देख लिया है ना, वो व्हाट आई कैन बी, फिर उसको आप अनसी नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि कभी कि कोई चीज आपको दिख रही है, उसको फिर आप अनदेखा कर सकते हो क्या, अब नहीं दिख रही? ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपने वो अपना बेस्ट सेल्फ देख लिया तो वो अनदेखा कभी भी नहीं होगा। तो वन, बिकॉज यू कैन नॉट अनडू इट, एंड टू, अगर वो नीचे चला भी जाएगा कोई पहचानेगा क्या उसको? वो तो इतने छोटे छोटे से कीड़े हैं, मुझे कीड़े का नाम ही नहीं याद आ रहा, सोचो अभी तक नहीं याद आया। वो तो इतने छोटे छोटे से कीड़े हैं, ये तो बड़ा हो गया, पंख आ गए, उड़ रहा है, रिलेट ही नहीं कर रहे हैं वो लोग उसको। सो यहाँ पे एक बहुत ही और भी मजेदार बात है जो आपको अपने आप से बोलना है जब भी आप यहाँ पहुंचो। कैटरपिलर, नो इट इज नॉट अ कैटरपिलर आई थिंक। तो यहाँ पे जो अपने आप से आपको बात बोलना है वो ये बोलना है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू होने से कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, जस्ट टेल योर सेल्फ दैट यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। और कोई मुझे अब बोलेगा ना आके कि तुम बदल गए हो, मैं बोलूंगी थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत पैसा खर्च कर रही हूँ, बहुत टाइम खर्च कर रही हूँ, बहुत एनर्जी खर्च कर रही हूँ अपने ऊपर, थैंक यू दैट यू नोटिस दैट आई हैव चेंज्ड। एंड व्हेन यू ओपन अप, you open up to the next level of yourself. You open up to the next level of yourself. And obviously, with support, it becomes very, very, very easy. So, okay. Now, मुझे बताओ in the chat box, डिड यू गेट योर आंसर्स? जो पहले ऊपर जिन्होंने भी बातें अपनी की हैं, जिन्होंने बताए अपने क्या सभी कुछ एड्रेस हुआ हमारा? प्रोक्रेस्टिनेशन एड्रेस हुआ, इनकंसिस्टेंसी एड्रेस हुई, अवॉइडिंग डिबेट भी थोड़ा बहुत एड्रेस हुआ। टीना, टीना इज देयर, टीना इज नॉट देयर, थोड़ा है, टीना इज देयर, यस, थोड़ा बहुत वो भी एड्रेस हुआ, एंड पीपल प्लीजिंग भी एड्रेस हुआ। सो आई थिंक एवरीथिंग इज addressed. If you feel anything has remained unaddressed, you can tell me in the chat box. एंड ऑल्सो टेल मी इन द चैट बॉक्स, इनमें से जो हमने कितने, हाउ मेनी ऑफ देम वर देयर? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 किससे आपने सबसे ज्यादा रिलेट किया? विच वन इज यू?
आपको कौन कौन सी रेजिस्टेंस है जो आपको शो अप करती हैं? हाउ योर रेजिस्टेंस शोज अप, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ योर रेजिस्टेंस? आपने कहीं वो रिलेट किया हो, कहीं आपको लगा हो कि हाँ ये मेरे साथ होता है, जस्ट टेल मी इन द चैट. नंबर 3, अभी 3 पे ही अटके हैं हम, शुरुआत जहां से की थी. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. सो इट इज गुड, इट इज गुड व्हेन यू नो. सो अच्छा, एक और आ गया 8. ठीक है. सो व्हेन यू नो, वो बात वहीं से फिर शुरू होती है कि व्हेन यू नो, सबसे पहले अवेयरनेस. अवेयरनेस आ गई. आपने जब बोला ये 8, आपने जब बोला 3, एक्सेप्टेंस आ गई. अवेयरनेस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई. अब सिर्फ एक काम बचा है, एक्शन. जो एक्शन बताया है मैंने उसमें 3 में या 8 में, 3 में कि आप अलाइनमेंट पे ज्यादा ध्यान दो और बैलेंस पे कम ध्यान दो. और लोन वोल्फ, अच्छा, अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिटी. सो विक्रांत, आपने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया कम्युनिटी बिल्डिंग, मुझे ऐसा लगता है. सो यस, कम्युनिटी और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अगर आप रखोगे और वो बनाओगे, सो यू जस्ट नीड टू टेक एन एक्शन. सो व्हाई आई एम सेइंग कि विक्रांत ने ऑलरेडी शुरू कर दिया, क्योंकि विक्रांत हैज टेकन दैट बोल्ड स्टेप कि मैं आना चाहता हूं कम्युनिटी में. विक्रांत ने कल कॉल बुक किया है. वेदर ही लैंड्स अप जॉइनिंग और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट इशू. एटलीस्ट ही हैज शोन दैट करेज कि यस आई वांट टू डू इट. सो ओके, सो नाउ लेट मी डिस्क्लोज माय एंटायर ऑफर फॉर यू. अब मैं पूरा ऑफर, माय सुपर ह्यूमन सिंड्रोम इज वेरी पॉजिटिव, इट्स एंथुजियाज्म डे टू डे. ओके. So, Monica, good you brought up this, because a lot of times what our brain does is वो हमें reasons देता है to just validate this. वो जो भी हमारा resistance है, so because like the language you use, my superhuman syndrome is very positive. It is giving you reason कि ये positive है. Just look into it if it is not draining you. अगर ऐसा लगता है कि बहुत थक रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड करना पड़ रहा है, यू कैन ऑलवेज टेक सम टाइम ऑफ. सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. ठीक है. एनीवेज, चलो, तो अब मैं पूरा अपना ऑफर जो हमने कल थोड़ा सा बताया था ब्रीफ में, आज मैं पूरे ऑफर को बताने के लिए तैयार हूं. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लिसन टू इट? एंड जिन्होंने कल कॉल बुक किया है, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि आपके पास में रेडी, राजेश रेडी हैं, तो आपके पास में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का चांस भी है व्हेन यू लैंड अप जॉइनिंग. सो फॉर द ऑफर आई शेयर माय पीपीटीज फॉर यू, बिकॉज वो मैं नहीं चाहती कि मैं रैंडम आपको बताऊं, वो मैं चाहती हूँ पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैं आपको बताऊं. इसीलिए आई विल शेयर माय पीपीटी विद यू फॉर द ऑफर थिंग. So is my PPT visible? I want some yeses in the chat box and whether I am audible and visible as well. Yes? Okay. I'll keep checking. ये मेरा दूसरे पीसी पे आपके responses, ठीक है? चलो. And I want you to stay very, very connected to me through the this offer, because मैं आज पहली बार का मतलब है आपके साथ में पहली बार मैं रिवील कर रही हूँ. सो यू नो दैट दिस जर्नी इज नोन एज 100-day लाइफ अलाइनमेंट जर्नी, अ जर्नी फ्रॉम व्हाट यू आर टू व्हाट यू कैन बी. एंड द फ्रेश बैच स्टार्ट्स नेक्स्ट वीकेंड. सैटरडे या संडे को हम शुरू करेंगे. वाई आई एम सेइंग दिस कि सैटरडे या संडे को शुरू करेंगे, बिकॉज इट इज अ स्मॉल बैच. तो हम मोस्टली ट्राई करते हैं व्हाट इज मोस्ट कंफर्टेबल फॉर द मेजॉरिटी, उस दिन पे हम रखते हैं. इसीलिए मैं बोल रही हूँ सैटरडे या संडे. ओके. सो ओके, लेट मी टेल यू how this goes. So it is a journey of 100 days of working on you, with you, for you, to realign you. So this is starting next weekend, coming weekend. As I told you yesterday also, already 4 people are already inside the program. So we can only take a few more. Few more का मतलब है 2 या 3, and not more than 4 in any case.
So because I believe in results and because I want to make sure that each one of you is looked after in my community and each one of you achieves those results which we want. So इसीलिए छोटा group. So I cannot do it for a lot of people. तो छोटा. Why 100 days? 100 days सुन के ऐसा लगता है 100 दिन. Because transformation takes time. Transformation एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं होगा. It will take time. So yes, it is a 100-day journey. Yesterday there were confusions. किसी को लगा मैंने कहा 2 लाख रुपए अगर आप दोगे तो कम्युनिटी में आओगे. So 2 lakh is the price of my one-on-one. This is not a one-on-one. So no confusions from now onwards. This is not for 2 lakh for sure. Now I'll tell you something more. What you invest. So how many of you want to know this? कि investment क्या है? Give me a me in the chat box. अगर आप जानना चाहते हो कि investment क्या है? And why I am calling this investment? Because you are investing. इसका return मिलने वाला है आपको. ये हम जुआ नहीं खेल रहे नहीं. So this is an investment. Tell me, give me a me in the chat box if you want to know what is the investment on these 100 days. Okay. So सबसे पहला investment. 2 hours every weekend for the learning. 2 hours every weekend for the learning. दे सकते हो आप? Can you give me 2 hours every weekend? Good. Then less than 30 minutes every day to practice whatever you have learned. Implementation and practice के लिए आधा घंटा हर रोज, कम आधे घंटे से भी कम हर रोज. And then a 30-minute for my one-on-one. One-on-one with me every week. यानी कि ये सब मिला के हो गए 5 घंटे हफ्ते में. Can you give 5 hours to yourself for your growth? Every week for the next 100 days. आप दे सकते हो अपने आप को. Give me a yes in the chat box. Give me a yes in the chat box, or I would say give me a I can in the chat box. I can in the chat box, not yes. I can. Yes. Wonderful. And what else do you invest? You invest rupees 50,000 all inclusive as energy exchange. So this 50,000 is not just the money thing. It also ensures your commitment towards the program, towards the journey. And I hope कि सबको पता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं कि I will give you a better offer. ये फाइनल ऑफर नहीं है. ये पक्की बात है. ये सबको पता है ना सबको. Give me a thumbs up अगर आपको पता है कि ये फाइनल ऑफर नहीं है. This is just the basic price. Because you have been with me for last 3 days. And I want to honor you for that. So इसीलिए ये फाइनल ऑफर नहीं है. I will give you the final offer after a while. लेकिन फाइनल ऑफर देने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें प्रोग्राम में है क्या क्या. What you will get from it. And before that, इससे भी पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में है क्या क्या, मैं शेयर कर रही हूं आपके साथ व्हाट्सएप पे. गिव मी अ मोमेंट. एक सेकेंड. मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूं मीटिंग बुकिंग लिंक. मीटिंग बुकिंग लिंक मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूं. अरे एक मिनट. व्हाट्सएप पे तो ऑलरेडी है लिंक वैसे, बट स्टिल I am sharing it again on the WhatsApp, the meeting booking link. क्योंकि कल मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला बाद में that वो मोबाइल पे हो नहीं रहा था. क्योंकि it was on the Zoom, तो इसीलिए होने में थोड़ा परेशानी हो रही थी. इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ आपको WhatsApp पे मीटिंग बुकिंग लिंक.
एज आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो, मेरे पास लिमिटेड स्पॉट्स हैं, 2 स्पॉट्स ऑलरेडी मीटिंग बुक हो चुके हैं, 3 स्पॉट्स अभी और अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए I'll share my screen once again. मीटिंग बुकिंग लिंक आपको मिल गया व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको मिल गया है? यस, चलो। सो ड्यूरिंग व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट द प्रोग्राम ड्यूरिंग दिस जर्नी, किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है नाउ आई एम रेडी, just go and book that meeting booking link. Go and book your call with me. And again, to make sure, booking a meeting with me, a call with me does not ensure that you get that spot. वो जो 4 स्पॉट हमारे पास और हैं उनमें आपको स्पॉट मिलेगा, ये इंश्योर नहीं करता। रादर हम बात करेंगे एंड वी विल सी इफ वी आर अ गुड फिट। वी विल सी इफ वी आर अ गुड फिट। आपको मेरे साथ काम करना अच्छा लगेगा या मैं आपके साथ काम कर पाऊंगी, बोथ द थिंग्स, राइट? सो नाउ लेट मी वॉक यू थ्रू कि हम करेंगे क्या इन 100 दिन। सबसे पहले इट इज 100-day जर्नी, आपको पता है, विच मीन्स 14 वीक्स। वी विल हैव 14 वीकली कॉल्स इन द ट्राइब, इन द कम्युनिटी। In our very first call, we will set intentions. Intention set करने का मतलब क्या है? हम ये देखेंगे कि what is the point A, आप कहाँ हैं और आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। फर्स्ट सेशन में हम इंटेंशन सेटिंग करेंगे एंड ड्यूरिंग द कॉल जब भी आपको अभी लगता है 1 2 3 4 लिखा हुआ इन पॉइंटर्स के आगे, जस्ट कीप लेटिंग मी नो कि आप किस पॉइंट पे ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट आपको लगता है अरे ये मजेदार चीज है, दिस इज समथिंग आई वांट। सो 14 वीकली कॉल्स होंगे हमारे। फर्स्ट कॉल में हम इंटेंशन सेट करेंगे, व्हाट इज द पॉइंट ए एंड व्हाट इज माय पॉइंट बी। इन द सेकेंड वीक वी विल go deep down with our priorities. We will find out कि हमारी priorities क्या हैं. We will do a passion test to understand what is your calling. जैसा विलास बीच में बोल रहे थे कि हाँ ये पता कैसे चलेगा कि मेरा पर्पस क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए और कहाँ पे हमारा फोकस मिसअलाइंड है विद दैट कॉलिंग, विद दैट पैशन, हम ये फाइंड आउट करेंगे इन दी सेकेंड वीक। आर यू विद मी? इन तीनों में से बेस्ट क्या है? विच वन इज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? हेल्प करेगा ये इंटेंशन सेटिंग, और अगर हमको पता चल जाए कि हमारा पैशन कहाँ है, हमारा कहाँ हम मिसअलाइंड हो रहे हैं, अगर ये पता चल रहा है तो हेल्प करेगा क्या? क्या हेल्प करेगा इसमें से आपको? जस्ट गिव मी अ नंबर इन द चैट विंडो सो दैट आई कीप नोइंग हु, मतलब वेयर डू यू रिलेट मोस्ट। Then in the third week, we do the character assessment test, जो मैंने आपको अभी रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे थे उसमें बताया भी है। हम कैरेक्टर असेसमेंट टेस्ट करेंगे जिसमें वो 24 स्ट्रेंथ्स में से we will find out for each one of you what are your default strengths, वो जो आपकी टॉप 4 स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी बॉटम 4 या 5 स्ट्रेंथ्स क्या हैं, so that we can play on our strengths and we can avoid the areas which we are weak on, right? So that we can play on these strengths and avoid the areas which we are weak on. तो अगर आपको ये exactly पता चल जाएगा कि क्या areas weak हैं और क्या areas आपकी strength है, मजा आएगा ना इसमें? fun, would it be fun? Just give me a fun F for fun in the chat window if it would be a fun. Give me F in the chat window. Yes, it is fun. एंड ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ असेसमेंट जो है ना, दिस इज समथिंग दैट्स एविडेंटली हेल्प्स। ये बहुत एविडेंटली हेल्प करता है इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन द रिलेशनशिप। अगर आपका अलाइनमेंट रिलेशनशिप में गड़बड़ है तो ये बहुत ही एविडेंटली हेल्प करेगा, बिकॉज यू नो कि क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं। तो जब वो बातें चल रही हैं तब आप उसको ठीक कर पाओगे। और जब आपको पता है वीक इन चीजों में वीक हूं, दीज areas, these things I cannot take very positively, you know it now, तो आप वहां से टाइम ऑफ ले सकते हो, राइट? और जो हमारे 8 एरियाज ऑन द व्हील ऑफ लाइफ, वो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो है नहीं, आपको पता ही है। वेदर इट इज अ रिलेशनशिप इशू, वेदर इट इज अ हेल्थ इशू, वेदर इट इज अ करियर इशू, क्या वो सबको इम्पैक्ट करते हैं? तो अगर आप रिलेशनशिप में अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली ऑल योर एरियाज विल बी इम्पैक्टेड।
अगेन अनघा ने जो कल क्वेश्चन किया था कि क्या सभी एरिया में आप हेल्प करोगे, यस, बिकॉज दे आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स. आप एक जगह इंप्रूव करते हो, इट ऑटोमेटिकली इंप्रूव्स योर अदर एरियाज, ऑल अदर एरियाज. सो कीप राइटिंग द सीरियल नंबर्स. जो भी मजेदार लग रहा है कि हाँ ये अच्छी चीज है, कीप राइटिंग दो सीरियल नंबर्स इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कीप नोइंग. सो अब एक क्वेश्चन अक्सर लोगों का आता है कि व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इफ नहीं, व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड दिस से पहले अब ये हम करते हैं कैरेक्टर असेसमेंट. उसके बाद में वी डू एवरी वीक वी डू अ वीकली कोचिंग कॉल. जो मैंने शुरू में पहला पॉइंट भी आपको बताया, 14 वीकली कॉल्स होंगे, 14 वीकली कोचिंग कॉल्स होंगे हमारे, 2 आवर ईच, 2 आवर ईच, 2 घंटे हर रोज के ये वीकली कॉल्स होंगे. दीज कॉल्स विल बी लाइव ऑन जूम. दीज कॉल्स विल बी लाइव ऑन जूम, लाइक आज जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल वैसे. कटी हुई है और टीना, टीना कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? यस, थैंक यू. ठीक है. सो लाइक जो हमने भी 3 दिन का बूट कैंप किया, बिल्कुल इसी तरीके से लाइव कॉल्स होंगे, 2 घंटे का वीकली कोचिंग कॉल होगा. सो अक्सर क्वेश्चन आता है कि अगर ये 2 घंटे के वीकली कोचिंग कॉल में मुझे कुछ समझ नहीं आया, व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड फॉर दैट रीजन वी हैव अ डेडिकेटेड 30-minute slot for Q&A. Dedicated 30-minute slot for the Q&A. ठीक है? With me everyone till here? Give me a 1 in the chat box if you are with me. Give me a 1 in the chat box if you are with me. So when it is a live session, people also ask me, what if I miss the sessions? What if I miss the sessions? So answer is, if at all you miss the session, you have access to the recordings. आप सैटरडे संडे, क्योंकि 100 दिन में शायद कोई एक आध सैटरडे संडे ऐसा हो सकता है जब आपको बाहर घूमने जाना है, जब आपका कोई और एंगेजमेंट है, यू हैव एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स. और इन रिकॉर्डिंग की एक्सेस आपको 1 साल तक रहने वाली है. 1 साल तक आप कभी भी यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो एंड सी एंड लर्न अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और अपने आप को उसको रिफ्रेश आप करते रह सकते हैं. आप अब लाइव सेशन के बाद में क्या, आफ्टर द लाइव सेशन और आफ्टर यू हैव वॉच्ड द रिकॉर्डिंग्स, नाउ यू प्रैक्टिस एवरीथिंग थ्रू आउट द वीक. सो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. अभी पढ़ा, इस हफ्ते प्रैक्टिस किया, तो हैंड्स ऑन सारी प्रैक्टिस चलती रही. नाउ पीपल ऑफन आस्क मी, व्हाट इफ आई गेट स्टक ड्यूरिंग द प्रैक्टिस? अगर प्रैक्टिस के दौरान मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कहीं अटक गया, अटक गई, तो क्या होगा? एंड फॉर दैट you will get worksheets and tools. बहुत सारी worksheets होंगी, बहुत सारे tools होंगे जिनको आप जैसे ही करना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, because I already told you writing is such a powerful tool you have कि आपको सब चीजों के आंसर मिलते हैं. तो जैसे ही आप worksheets लिखेंगे, वो tools इस्तेमाल करेंगे, you will get all your answers. And to make all this a fun experience, fun learning experience, you will get challenges and homework. Challenges and homework. And please डोंट फील ऐसा कि ओवरवेल्म्ड अबाउट दिस कि अरे इतना कैसे कर पाएंगे. वो आधा घंटा रोज चाहिए बस. मुझे आधा घंटा रोज देते रहोगे तो यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग. सो होमवर्क और चैलेंजेस होंगे जो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव करेंगे, आपको बेटर इंप्लीमेंटेशन भी करवाएंगे. एंड दिस विल ऑल्सो इंश्योर कि आप ट्रैक पे रहे, आप ऑफ ट्रैक ना हो जाए. आपका वो जो कंसिस्टेंसी का बहुत सारे लोगों के साथ में इशू आता है, वो कंसिस्टेंसी आपकी कहीं ब्रेक ना हो जाए. Now people often ask me कि मोटिवेशन का क्या होगा इस जर्नी में, 100 दिन की जर्नी में किसी दिन डीमोटिवेट हुए तो क्या होगा? So to ensure that you stay motivated and keep going, you will have an accountability partner with you on this journey who will keep on pushing you. अब pushing you सुन के डर मत जाना, because वो फन वे में पुश करेगा. वो कैसे डंडा लेके नहीं बैठने वाला है आपके ऊपर कि ओ क्या हो जाएगा. So कुछ भी नहीं होने वाला. He will just keep on, he or she will just keep on pushing you. And to celebrate your wins and to keep a track of your progress, जो भी आप करते जा रहे हो उसका progress
रखने के लिए और आपके विंस को सेलिब्रेट करने के लिए वी हैव अ ग्रोथ ट्रैकर, जिसमें आपको भी दिखता रहेगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी के दौरान आपने कितना रास्ता तय कर लिया, ये आपको खुद भी दिखेगा, एंड वी विल सेलिब्रेट द विंस। ओके, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स हाउ विल यू फील जब आपको हर हफ्ते आपकी विन सेलिब्रेट होगी इन द रूम, कैसा लगेगा आपको? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, विल इट फील ग्रेट? अगर ग्रेट लगेगा तो जी लिख दो, और कुछ और लगेगा तो वो शब्द लिख दो, प्रेशियस, यस, गुड, यस, अमेजिंग। So now, what if I still have doubts? If I don't want to discuss on a weekly call, कोई ऐसे issues हो जो मुझे discuss नहीं करने इतने लोगों के साथ में, and for that reason, you get a one-on-one call with me every week. Meaning 14 weekly calls in a group and 14 weekly calls with me individually. Give me a CC in the chat if this is a cherry on the cake. If these weekly calls are cherry on the cake, give me a CC on the chat, please. Yes. So now it's time for the final offer. लेकिन मुझे ये बताओ पहले चैट बॉक्स में बताओ किसको चाहिए फाइनल ऑफर. Just say me in the chat box जिसको भी फाइनल ऑफर चाहिए हो. जिसको भी फाइनल ऑफर चाहिए say me in the chat box. बस सिर्फ मोनिका को चाहिए, मोनिका मैं अकेले में दे दूंगी आपको. और किसी को चाहिए क्या? अच्छा, रिचा को भी चाहिए. सो और किसी को चाहिए फाइनल ऑफर? विक्रांत को भी चाहिए. और किसी को चाहिए फाइनल ऑफर? अदरवाइज मैं इन लोगों को, 3 लोगों को, विक्रांत ने तो कॉल बुक कर लिया तो वहीं दे दूंगी मैं फाइनल ऑफर. रिचा को भी वहीं दे दूंगी मैं फाइनल ऑफर, रिचा ने भी कॉल बुक किया है. Anybody else who wants to see the final offer, wants to know the final offer, wants to know what is the real investment, actual investment you will have to do when you enter inside my community. So yes, I'm just joking. I will any which ways give you the final offer. So the final offer, so because I love you all so much, and more than that, because I love your commitment towards yourself. ये पिछले 3 दिन से आप रोज आ रहे हो, रोज ये 2 घंटे के वर्कशॉप में, बूट कैंप में बैठ रहे हो, तो आपका ये जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर अलाइनमेंट, इसको ऑनर करने के लिए मैं आपको फाइनल ऑफर देने वाली हूँ. So life alignment journey starting next weekend is coming to you not for rupees 50,000. Not for rupees 50,000. And because I want to honor your commitment towards your own self, I'm giving you a never, never, never before offer. Never before offer का मतलब ये कि आपने कभी भी ऐसा इस तरह का ऑफर सुना नहीं होगा जिस तरह का ऑफर मैं आपको देने वाली हूँ. I will give you 10% discount for each day of your attendance. 10% discount for each day of your attendance. तो आप में से जितने भी लोगों ने तीनों दिन अटेंड किया है उनको 30% डिस्काउंट. People who have booked the call with me yesterday उनको additional 10% discount, यानी कि 40% discount. So 40% discount is the highest discount I am giving. So this will come to you as per your attendance because I have your attendance with me. मैंने आप लोगों को किसी को ये भी भेजे हुए हैं. So at any now जिन्होंने कल कॉल बुक कर दिया उनके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली कि उनको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. दैट यू विल बी गेटिंग 40% discount like Vikrant. Vikrant has attended all 3 days. So all 3 days plus 10% is 40%. So now the room is open. I'll just stop sharing the slides and room is open for questions and shares. If you have any questions about the journey, ये 100 दिन की journey कैसे होगी, about the offer, about anything else जो हमने पिछले 3 दिनों में बात की है, just raise your hands and I will spotlight you. Just raise your hand and I will spotlight you. Do you have any questions? If you have any questions, if you have any shares, if you want to maybe get more answers to your resistance, just raise your hand and I will spotlight you.
and I will spotlight you. Anyone? Does anyone has a question? It is 7:41. We still have 20 minutes to go. अगर आपके पास questions हैं, अगर आपके पास कोई shares हैं, if you want to express anything, if you want to ask anything, most welcome. Room is open. Just Are we going to decide the timings according to the popular vote? yes. Yes. Saturday or Sunday. So according to the popular vote, meaning I will give you those slots कि either this or that. फिर otherwise तो 8 लोगों के बीच में अगर 24 घंटे में वोट करने लग जाएंगे तो कभी होगा ही नहीं. So yes. So okay. Anyone, anybody, if you have any questions, if you have any doubts, if you have any shares, anything is most welcome. Just raise your hands and ask. Anagha, Richa, Vikrant, Saket, Vilas, Abhimanyu, Saket, दो साकेत दिख रहे हैं. Swati, Yes. I have a doubt regarding the prices Okay. that you are mentioning 10%. वो थोड़ा सा clear way में can you describe that thing? Okay. So 10% for each day of your attendance. 3 दिन का boot camp था. अगर आपने सिर्फ 1 दिन attend किया 3 दिन में से you will get a 10% discount. अगर आपने 2 दिन attend किया you will get a 20% discount. अगर आपने 3 दिन attend किया you will get a 30% discount. Plus a discount of 10% extra जिसने कल कॉल बुक किया है. So you had booked the call yesterday but your attendance is 2 days. You will get a 30% discount. Vikrant, who has attended the boot camp for all 3 days, will get a discount of 40% if at all you land up joining. मतलब क्या? अगर हम कॉल पे जब आए and we felt that yes, it is a good fit for me, for you, then, right? So for Vikrant, अगर Vikrant lands up joining, for Vikrant it will be 30,000. For you, it will be 40,000. 35. 35? Okay, 35. थोड़ा सा मेरी भी मैथ्स कमजोर है, कोई बात नहीं. Anything else? Anybody, any questions? Are most welcome. Any shares? कोई कुछ शेयर तो कर ही सकते हो कम से कम कुछ ना कुछ आप लोग. Questions तो नहीं है, वो ठीक बात है. Because I think in the past 3 days we have been discussing so much on the same topic that if you don't have any questions, this is perfectly fine. But I would love to have shares from you. कि क्या वो moments हैं, क्या वो चीजें हैं, क्या वो reflections हैं, क्या what had happened इन 3 दिनों में, क्या ऐसा हुआ, क्या कुछ शिफ्ट हो गया, क्या अगेन जहां हमने शुरू किया था आज का दिन, we started with a question, what's one thing that feels hard now but would give me peace tomorrow? इस क्वेश्चन का आंसर, या फिर what will it cost you to ignore, ये जो 2 दिन में हमने सीखा है उसको इग्नोर करोगे तो what is the cost for you? Can you realize that? So I just want you to share whatever is your reflection on that. मुझे ऐसा लगता है स्वाति, हम जितनी देर तुम्हारे साथ रहते हैं तो बहुत सारे दिमाग खुलते हैं, बहुत सारी चीजें करने की चाह बढ़ने लगती है, मन करता है ऐसा भी करें, ये भी होना चाहिए. लेकिन Okay. जब मीटिंग खत्म होती है उसके बाद फिर से उसी फेज में वापस आ जाते हैं. तो मुझे लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम जो 100 डेज की जो वर्कशॉप है वो कीप प्रैक्टिसिंग जो हमारी चलेगी, शायद Yes. उसी से इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा. What I feel. Definitely, Richa. This is why this journey is for 100 days. So Mm. that everything comes in your practice and everything which we are talking about becomes your default. आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े to get that motivation. That motivation comes from inside. और rather than motivation की जगह मैं कहूंगी वो clarity, courage and consistency वो अंदर से आने लगे. Because motivation, encouragement, blah blah blah, ये सब की expiry date है. All of these things fade away. Having said that,
I would also like to mention, ये रिफ्रेशर करते रहना भी जरूरी है. ये रिफ्रेशर करते रहे. 100 दिन के बाद में your life will be a smooth ride for quite a long time. But then a refresher. वो सदगुरु के आश्रम में चले गए हम, या फिर श्री श्री रविशंकर के आश्रम में जाते रहते हैं ना. जाते हैं तो नई नई चीजें पता पड़ती है, नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स पता पड़ती है, नई नई बातें पता पड़ती है. सो दे ऑलवेज एड अप. So yes, you will need a refresher sometime or the other, but otherwise this 3C formula is pretty much will take you everywhere anywhere you want, rather. So yes, thank you for asking it. Anagha, do you have anything? No? So, no point waiting. Okay, can I ask everyone to switch on the cameras once again? Vikrant, Vilas, Abhimanyu, Saket. एक बार तो कैमरा ऑन कर दो. इसीलिए मैं बार बार मैसेज भेजती रहती हूँ कि अच्छे से तैयार होके बैठना, सो दैट कैमरा ऑन करने में शर्म ना आए. So come on once again, and I'll just say bye to every one of you because our boot camp is officially over. Anybody switching on the camera, please? Abhimanyu, are you there? Vilas, again, I was saying this. शुरुआत में मैंने कहा था ये इसीलिए कि I will remove the people who जो switch on नहीं करेंगे उनको, लेकिन किया नहीं मैंने क्योंकि मेरा दिल बहुत वैसा है ना. Good, thank you Vilas. मेरा दिल बहुत कच्चा है एक्चुअली, और मैं इतना मतलब I love everyone so much कि मुझे लगता है कि नहीं, वो लर्निंग अगर कोई कर रहा है कैमरा बंद करके भी तो कर तो ले, लेकिन मैं इतना प्यार कर रही हूँ, तुम लोग भी थोड़ा दिखा दो मुझे प्यार. वो अभिमन्यु, साकेत, एनीवन, एक और स्क्रीनशॉट लेंगे हम बढ़िया सा, एंड देन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. लेट्स मीट some other time. Thank you so much Abhimanyu for switching on the camera, your video. विक्रांत आप आ रहे हो क्या? साकेत, यू कमिंग इन? बस 2 लोगों का मैं वेट कर रही हूँ और किसी का मैं वेट नहीं कर रही. पूजा, इफ यू कैन प्लीज, if at all you can. I'm not forcing you. Others I am forcing because I want to see who is behind this छोटा सा black color का icon. वो साकेत, how does साकेत look? मुझे देखना तो है एक बार. So एक बार if at all. Okay, can you please click a screenshot? विक्रांत चले गया, बोले कैमरा नहीं ऑन करूंगा, मैं चला जाऊंगा. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो ना प्लीज एक. Are we done? Thank you. So okay, bye bye everyone. मिलते हैं किसी अगले मुकाम पर. Bye, all the best and keep aligning. Bye.